Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I Anshul Singh welcoming you all to your GK class. So students, today we are going to start with the next topic, that is politicians and leaders. So that is our unit number 8, that is politicians and leaders. So everybody kindly open your books at page number 34, that is politicians and leaders. So write down the write down the page number topic, that is politicians and leaders, given at page number 34. This is the topic today. This is the today's topic, that is politicians and leaders. So beta, in this topic we are going to discuss about the various politicians and the leaders of various countries, not over of India only. Rather than the India, we will talk about the politicians and the leaders of different countries who has done some great contribution to their society, to great contribution to the mankind, to the humanity. So there are several people who have done several things that are very fruitful for our society, and that we are going to discuss in this class. Okay, so let me just read the heading first. These outstanding people are famous for their achievements in the fields of politics and social reform. Identify them by choosing the correct answer from the help box given on the next page. So दीज आउटस्टैंडिंग पीपल, तो ये जो कुछ लोग हैं, जो महान लोग हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, उनके अलग अलग अचीवमेंट्स हैं जो कि उन्होंने कुछ पॉलिटिक्स और सोशल रिफॉर्म्स मीन्स जो हम सोशल हम लोगों के बीच में जो अलग से चेंजेस लाए हैं, जो कि फॉर द बेनिफिशियल चेंजेस, हमारे लिए बेनिफिशरी हैं वो, तो मतलब हमारे लिए अच्छे हैं दोज चेंजेस दैट आर ब्रॉट बाय दिस सम ऑफ दीज डिग्नेटरीज, एंड आइडेंटिफाई देम बाय चूजिंग द करेक्ट. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द नेम्स. ओके, हमें इनके नेम्स बताने हैं बाय चूजिंग द बाय रीडिंग अबाउट द क्लूज. देयर आर सर्टन क्लूज गिवन अबाउट देम. उनके बारे में कुछ क्लूज दिए हुए हमें, तो उन्हीं को आइडेंटिफाई करते हुए हमें उनके बारे में बताना है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, and he is also the only British Prime Minister to receive the Nobel Prize in Literature. So जिनकी बात हम कर रहे हैं वो यूनाइटेड यूके के प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स, एंड एज वेल एज ही इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिनको की नोबेल प्राइज भी मिला है इन लिटरेचर. सो he is the there are two things about that. He was the prime minister of United Kingdom during the second world war, as well as he is the only prime minister who has won the Nobel Prize in the field of literature. So what is his name? His name is Winston Churchill. His name is Winston Churchill. So Winston Churchill won the Nobel Prize for his great contribution in the literature, and other than that he was the prime minister of UK during the second world war. So the answer of your first blank is Winston Churchill. Winston, Winston Churchill. Churchill, Churchill, Winston Churchill. So this is the name. That is Winston Churchill is the Prime Minister of United Kingdom during the Second World War, and he has won the Nobel Prize for the literature as well. Second one, he he was an Indian scientist and leader who played a major role in the development of India's missile and nuclear weapons program. He was also the president of India from 2002 to 2007. So second personality that we are talking about, he is commonly known as the missile man. इनको इंडिया का मिसाइल मैन बोला जाता है, और ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. ओके, और इन्होंने इंडिया की जो
मिसाइल्स की जो साइंटिफिक व्हाट वी कॉल इट डेवलपमेंट है, जो मिसाइल्स की जो डेवलपमेंट उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, एंड दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ओके, मिसाइल मैन. एंड second thing about this is that he was the president of India from the year 2002 to 2007. So वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे from the year 2002 to 2007. Okay, so he was a great scientist. Second thing, he was the president of India during 2002 to 2007, and he has a great contribution. He paid his great contribution to the India's development of India's missile टेक्नोलॉजी. जो हमारी मिसाइल्स की जो हमारी डेवलपमेंट में और न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको बनाने में इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन. सो न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स हैं, दीज आर ऑल्सो, ही ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन दैट साइंटिफिक फील्ड. एंड अदर देन दैट ही वॉज अ great scientist as well. So what is his name? He was a favorite prime minister, president of all of us. He is APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam. That is his name. That is APJ Abdul, ABDUAL, Abdul Kalam, KALAM. APJ Abdul Kalam was the President of India from 2002 to 2007, and he is also known as the Missile Man of India, and he had a great contribution in the development of the missile as well as nuclear weapons, okay, in India. Chaliye, moving next to the third one, known as the Baba Saheb. He was a lawyer, politician and social reformer who made efforts for the empowerment of the backward classes in India. He played a major role in framing the Indian Constitution. Yes. So the next personality, the next dignitary we are talking about, he had a great contribution in the in forming the Constitution of India. So मतलब उनके Constitution के सबसे ज़्यादा इनके लिए जाना जाता है. So he was a great politician. ठीक है, बहुत अच्छे नेता थे. Okay, he was a great lawyer. Lawyer means वकील. He was a great lawyer also. वो बहुत ही महान वकील भी थे. एंड सोशल रिफॉर्मर. सोशल रिफॉर्मर मीन्स ऐसे रिफॉर्म्स सोसाइटी में, ऐसे चेंजेस लाए इन्होंने जो कि बहुत ही ज़रूरी थे. ओके, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री. सो उनका जो निक नेम था, ही वॉज नोन एज द बाबा साहेब. इनको बाबा साहेब बोला जाता था. ओके, और इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया. तो इंडिया में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो हम जिसको हम बैकवर्ड क्लासेस हम कहते हैं, तो नीची जात जिसको हम बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट, शुड नॉट बी टोल्ड. एक्चुअली दिस इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड. सो द बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह के जो लोग हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए इन्होंने बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस, और उनके लिए ताकि लोग उनको नीची नज़र से ना देखें. ठीक है, लोग उनको, जो बाकी लोगों को, जो बाकी कैटेगरी के लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, जो बेनिफिशरीज मिलती हैं, तो वो उनको भी मिले. सो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉजेस डाले थे. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, देयर आर सर्टेन क्लॉजेस मेड, देयर आर सर्टेन व्हाट वी कॉल इट articles are written by him, so for the betterment of the lower section of the society. Okay, and other than that, he has played a major role in the Indian Constitution. तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था. सो हिज नेम इज Dr. B.R. Ambedkar. So his name is Dr. B.R. Ambedkar. And if you see that आजकल एक सोनी पे, so Sony TV, there is also a program is going on, that is इन्हीं के ऊपर एक प्रोग्राम आ रहा है. तो उसमें आपने देखा होगा, अगर आप, if you have ever seen it, so if you want to know about the life of Dr. B.R. Ambedkar, so you must watch it. Is a very great serial. So देखिए बेटा, जो ऐसे लोगों की जो महान बायोग्राफी होती है, बायोग्राफी जो बताई बायोपिक होती है, ये देखनी चाहिए. दे टोल्ड अस अबाउट द वेरियस थिंग्स दैट दे हैड मतलब गो थ्रू. वो कितने कितने मुश्किल हालातों से गए थे, तो फॉर बीइंग दैट ऑन दिस पोजीशन जिसमें वो आज हैं. सो दिस इज डॉक्टर B.R. Ambedkar. थर्ड वन इज डॉक्टर B.R. Ambedkar. This is the name. Fourth one.
चलिए, moving next to the fourth one. She became the youngest Nobel laureate when she was awarded the Nobel Peace Prize in 2014 for her protest against the injustice toward the women and her work for girls' education. So the next lady, the next girl, we are actually, she is not a lady, she is a girl that we are talking about. इन्होंने इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था. पीस प्राइज मीन्स नोबेल पीस प्राइज होता है फॉर द, मतलब अपनी जान की बाजी लगा देना बट पीसफुली किसी काम को करने के लिए. ये नहीं कि जिसकी वजह से कोई मतलब हमारी कंट्री को कोई लॉस है, ऐसा कुछ नहीं. मतलब शांति बनाए रखने के लिए कई लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं. फॉर दैट द नोबेल प्राइज पीस प्राइज इज गिवन टू देम. ओके, सो इनको जो लेडी वी आर टॉकिंग अबाउट, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था इन द ईयर 2014 एंड फॉर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस टुवर्ड द वुमेन्स एंड द गर्ल्स एजुकेशन. तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ओके, फॉर इनजस्टिस हुआ था जो वुमेन्स हैं. ओके, सो औरतों को जो नीचे लोगों आदमियों से कम समझा जाता था, वुमेन्स से कम समझा जाता था, उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था. एंड अदर देन दैट, जो लड़कियों की पढ़ाई के लिए कि मतलब इन द सम द टाइम्स टिल टुडे दे आर द सम कंट्रीज एंड दे आर द सम रीजन्स और द रिलीजन्स इन विच द टिल टुडे दैट गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू स्टडी. मतलब उसमें आज भी कई लड़कियां ऐसी हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी जो बेटियां हैं वो ना पढ़ें, बिकॉज दे फील दैट द गर्ल्स आर नॉट मेंट फॉर द स्टडिंग, they are just meant to do the household chores only. So but that is totally untrue. This is very wrong, that the proper education and the equal education should be provided to the girls as well like the boys, and it is written in our constitution as well. So इन्होंने इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था. This girl has protested against the right to the women's education and the girls education and the rights of the women, कि औरतों को अपनी for the betterment, अपने लिए फैसला लेने का, अपने लिए व्हाट वी कॉल इट, कि हम उसके मतलब अपनी खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनने का भी हक होना चाहिए. सो इन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था. एंड लेटर ऑन शी वाज शॉट बाय द टेररिस्ट, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑल्सो. सो शी वाज शॉट बाय द टेररिस्ट उनकी, एंड शी गॉट हिट बाय द, आई थिंक सम ऑफ द बुलेट्स ऑन हर फेस, एंड शी गॉट गॉन टू द वेरियस सर्जरीज. एंड लेटर ऑन शी गॉट द नोबेल पीस प्राइज इन द 2014. तो जब इनको प्रोटेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से कुछ टेररिस्ट ने इनकी जान लेने की कोशिश भी की थी, एंड शी वाज शॉट बाय, मतलब ऑन हर फेस, जिसकी वजह से उनका फेस है तो थोड़ा खराब हो गया था. ओके, एंड दिस गर्ल, एंड शी वाज वेरी स्मॉल व्हेन डिड शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स राइट्स एंड द गर्ल्स एजुकेशन. शी वाज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम. ओके, सो हर नेम इज मलाला यूसुफज़ई. her name is Malala Yousafzai. Her name is Malala Yousafzai. So let's just write down the name. That is Malala Yousafzai. M-A-L-A-L. Malala Yousaf. Y-O-U. Y-O-U-S-A-F-Z-A-I. Malala Yousafzai. So this is the name of the girl that she had protested against the equality for the women's rights and the girls' education. Chaliye, so these are the answers from question number 1 to 4. The first one is Winston Churchill. Second one is APJ Abdul Kalam. Third one is Dr. B.R. Ambedkar. Fourth one is Malala Yousafzai. Okay, moving next to the fifth one. He was the youngest Prime Minister of India. He made technology and computers available to common people in India. He was the posthumously awarded the Bharat Ratna in 1991. Okay, so the next personality we are talking about, he had paid a great contribution to the Indian education by मेकिंग अवेलेबल कंप्यूटर्स टू द कॉमन पीपल. जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स को लोगों के बीच में, कॉमन पीपल में लाने वाले कौन थे? दैट वाज राजीव गांधी, फादर ऑफ राहुल गांधी. ओके, सो राजीव गांधी हैज बॉट द टेक्नोलॉजी एंड द कंप्यूटर्स इन इंडिया, एंड ही वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर. ये सबसे यंग
सबसे जवान प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के. ओके, ही मेड द टेक्नोलॉजी एंड द कंप्यूटर अवेलेबल टू द कॉमन पीपल इन इंडिया. यही इंडिया में इंटरनेट एंड जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स जो इंडिया में कॉमन पीपल है, जो हम आम लोगों के बीच में लाए थे, इट वॉज बॉट टू द कॉमन पीपल बाय द राजीव गांधी ओनली. एंड इनको भारत रत्न भी मिला था इन द ईयर 1991. सो आफ्टर हिज डेथ ही वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न in the year 1991. So his name is Rajiv Gandhi. Okay, while he was the president of India, prime minister of India. So when was he on he was shot dead. It was shot dead he died in a bomb blast. Okay, while he was in some of his trip, मतलब वो किसी भाषण देने में के लिए किसी सभा में थे, and some lady has put a garland on in her neck, and that was having a bomb in it, and later on that bomb just blasted and he got died at the spot. And his name is Rajiv Gandhi. He is the father of Rahul Gandhi. You know Rahul Gandhi, everyone? He is Rajiv Gandhi. The answer of the fifth blank is Rajiv Gandhi. He was the youngest prime minister of India. R-A-J-I-V, Rajiv Gandhi. G-A-N-D-H-I. Rajiv Gandhi was the youngest prime minister of India. Okay, so he made technology and the computers available to the common people. Okay, chaliye, moving next to the sixth one. She was the first lady of the United States from 1993 to 2001. She had also served as 67th US Secretary of State. Okay, so ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट लेडी थी. ओके, फर्स्ट लेडी मीन्स द वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट. तो जो प्रेसिडेंट की वाइफ होती है किसी भी कंट्री की, शी इज टर्म्ड एज द फर्स्ट लेडी. ओके, सो द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, द लेडी वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, शी वॉज द फर्स्ट लेडी of the United States of America from the year 1993 to 2001, and later she became the secretary of the states. मतलब जो ये United States of America की secretary भी बनी थी, 67th US secretary. She was the 67th, that was her number. 67th US secretary बनी थी. Okay, and as well as she was the first lady of the United States from the year 1993 to 2001. So her name is Harry Clinton. So her name is not Hillary. Her name is Hillary Clinton. Her name is Hillary Clinton. HILLARY. Hillary Clinton. CLINTON. Hillary Clinton. This is the name of the Bill Clinton की वाइफ थी ये. Next one, seventh one. He led a long struggle against the apartheid and the racist white government of South Africa. He became the first president of independent South Africa. तो इन्होंने जो रेसिज्म था ब्लैक एंड वाइट का, गोरे और काले का रेसिज्म करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी एक लड़ाई लड़ी थी विद द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. वाइट गवर्नमेंट मीन्स गोरे लोग जो मतलब इन द वेस्टर्न कंट्रीज द पीपल दे फाइट फ्रॉम द मतलब वो अपनी कलर्स के ऊपर जो है रेसिज्म करते हैं कि मतलब उसके ऊपर फाइट करते हैं. तो गोरे हैं, काले हैं, ऑल दिस थिंग्स. सो दिस पर्सन हैज़ डन ग्रेट फाइट. ही हैड लेड अ ग्रेट फाइट. उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी अगेंस्ट द वाइट गवर्नमेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, एंड लेटर ऑन ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका. तो जब ये जो इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका जब इंडिपेंडेंट हुआ था, so at that time he became the first president of South Africa. So his name is Nelson Mandela. His name is Nelson Mandela. He became the president of independent South Africa. He became the first president of independent South Africa, and he led a great war against the white government of South Africa. So his name is Nelson Mandela. Nelson. Nelson Mandela. Mandela. Nelson Mandela.
MENDELA, Nelson Mandela. चलिए, moving to the 8th one. Noted for her political skills, she became the first female Chancellor of Germany in 2005 and the longest serving head of government in the European Union. So next person we are talking about, she had a political skills, okay, she became the first female Chancellor of Germany. तो ये सबसे पहली फीमेल चांसलर थी जर्मनी की, एंड शी बिकेम द फीमेल चांसलर ऑफ द जर्मनी इन द ईयर 2005. ओके, और ये सबसे देर तक लंबे, जिनका जो टाइम ड्यूरेशन था सबसे ज़्यादा था, लॉन्गिंग सर्विंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये गवर्नमेंट की हेड थी. शी वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट फॉर द इन द जर्मनी, ओके, सॉरी, इन द यूरोपियन यूनियन. ओके, सो हर नेम इज एंजेला मर्केल. Angela Merkel, she is the she became the first female chancellor of Germany in the year 2005, as well as she is the longest serving head of the government of the European Union. European Union की सबसे लंबे दौर की, सबसे लंबे ड्यूरेशन की जो हेड थी गवर्नमेंट की, she was the one of them. Okay, so her name is Angela Merkel. Angela Merkel, ANGELA, Angela Merkel, MERKEL, Angela Merkel. Okay, so these are the answers from question numbers 5 to 8. Fifth one is Rajiv Gandhi, sixth one is Hillary Clinton, seventh one is Nelson Mandela, eighth is Angela Merkel, and this is the last answer. Okay, so these are the answers from question numbers 5 to 8. चलिए, moving next to question number, we have lots of time there, so let's move to the next topic, that is famous lakes of India. So let's move to the topic famous lakes of India given at page number 38. तो देखिए, इसमें अलग अलग जो इंडिया की लेक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. फेमस लेक्स ऑफ इंडिया. फेमस lakes of India given at page number 38. Okay, famous lakes of India given at page number 38. चलिए, starting with the first one, the Vuller Lake. तो इसमें हम अलग अलग जो इंडिया में अलग अलग लेक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. झील, लेक्स मीन झील. ओके, सो फॉर द फर्स्ट वन इज वुलर लेक. वुलर लेक लाइज 32 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर. इट इज द लार्जेस्ट लेक इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन. इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ झेलम रिवर विच पासिस थ्रू इट. तो द फर्स्ट लेक वी आर टॉकिंग अबाउट, इसका नाम है वुलर लेक. तो ये श्रीनगर से 32 किलोमीटर्स दूर है और ये जम्मू और कश्मीर रीजन की सबसे बड़ी लेक है. और जो झेलम रिवर का जो पानी है दैट ऑल्सो कम्स एंड ऑल्सो पासिस थ्रू दिस लेक. ओके, सो द नेम ऑफ दिस लेक इज वुलर लेक. द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन? दैट विल बी वुलर लेक. सो वुलर लेक क्या है? ये जम्मू और कश्मीर रीजन की सबसे बड़ी और सबसे लार्जेस्ट लेक है. ओके, एंड इट लाइज फ्रॉम नियर अबाउट 32 किलोमीटर्स फ्रॉम द श्रीनगर से 2 किलोमीटर्स दूर है. एंड जो झेलम रिवर है दैट द वाटर ऑफ झेलम रिवर ऑल्सो पासिस थ्रू इट. ओके, चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द सेकेंड वन. सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ ओडिशा, चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट brackish salt water lagoon in Asia. It lies along the east coast of India in the delta of the Mahanadi River. It is home to a wide variety of the birds. So देखिए, the next लेक जिसकी हम बात कर रहे हैं ये ओडिशा की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेगून है. तो ये सॉल्ट वाटर लेक है सबसे बड़ी, ओके, ओडिशा की. और ये ओडिशा के जो ईस्टर्न कोस्ट है उस साइड पे है. दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट लेक एंड द नेम ऑफ दिस लेक इज चिल्का लेक. ओके, और ये एक डेल्टा फॉर्म करती है. डेल्टा मीन्स दैट ट्रायंगुलर, ठीक है, इसमें 3 जो रिवर्स हैं वो फॉर्म होती हैं. ओके, सो दिस रिवर फॉर्म द डेल्टा एट द महानदी रिवर. तो महानदी रिवर पे एक डेल्टा फॉर्म करती हैं.
और ये यहाँ पे बहुत सारी जो वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं जो यहाँ पे आती हैं। सो देखिए आपको पता है जो लेक्स पे बर्ड्स भी बहुत होती हैं। सो दिस इज द लार्जेस्ट द वैरायटी ऑफ बर्ड्स आर अट्रैक्टेड बाय ऑन दिस लेक। ओके, सो द नेम ऑफ दिस लेक इज चिल्का लेक एंड इट इज इन ओडिशा। ओडिशा की ईस्टर्न कोस्ट पे है ये। दिस लेक इज इन ओडिशा एंड दिस लेक्स ऑल्सो फॉर्म डेल्टा अलॉन्ग विद महानदी एट महानदी रिवर। चलिए, थर्ड वन इज सांबर सॉल्ट लेक। सांबर सॉल्ट लेक इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इन इंडिया। सो देखिए सबसे जो लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है इंडिया में कौन सी है? विच इज द लार्ज सॉल्ट लेक इन इंडिया? दैट इज सांबर सॉल्ट लेक। इट इज सिचुएटेड इन द राजस्थान salt sheets which form a distance look like snow often cover the lake's bed. The lake is usually dry in the hot months. Salt pans and refining works are located on the lake's shores. So देखिए ये जो लेक्स है, सॉल्ट में जैसे आप सुने ना समुद्र का पानी खारा होता है, इसमें सॉल्ट होता है, तो सेम लाइक दिस देयर आर सॉल्ट इन दिस द लेक्स ऑल्सो। सो द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज सांबर सॉल्ट लेक एंड इट इज इन राजस्थान। तो यहाँ इसके किनारे बहुत सारी फैक्ट्रीज एंड ऑल जहाँ पे सॉल्ट जहाँ पे नमक जो रिफाइनरीज का वर्क होता है, जो नमक को रिफाइन करने का वर्क भी यहाँ पे होता है। अदर देन दैट जो ये ड्यूरिंग जो गर्मियों के दौरान जो ये लेक है सूख जाती है। ओके, जो ड्यूरिंग द एट दैट टाइम द रिफाइनिंग वर्क ऑफ द सॉल्ट इज डन देयर। ओके, सो द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन ऑफ इंडिया इज Sambar salt lake, that is Sambar salt lake. चलिए, next one is Koleru lake. The next is Koleru lake is the largest freshwater lake of India and it is situated in Andhra Pradesh. So India की सबसे largest, which is the largest freshwater lake. Question बेटा इसी तरह से which is the largest freshwater lake and you will write down Koleru lake. Okay, ये आपको पूरा पैराग्राफ नहीं आएगा, क्वेश्चन आएंगे बीच में से। Okay, which is the largest freshwater lake? Then answer is Koleru Lake, lying between the deltas of the Krishna River and the Godavari River. It acts as a reservoir to the control floods. It is an important habitat for the migratory birds. So देखिए जो हम बर्ड जिसकी हम बात करें फ्रेश वाटर लेक है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी, दैट इज कोलेरू लेक। ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में आती है, लाइंग बिटवीन द डेल्टाज ऑफ कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर। तो ये जो कृष्णा और गोदावरी रिवर से जो डेल्टा फॉर्म होता है वो वहाँ पे है। एंड ये एक जो माइग्रेटिंग बर्ड्स जो दूसरी कंट्री से आते हैं ड्यूरिंग विंटर्स द बर्ड्स माइग्रेट मीन्स वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव। तो अपना अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट दे सर्च फॉर द एनवायरमेंट एंड दे माइग्रेट फ्रॉम कंट्री टू द कंट्री, दे फ्लाई ओवर कंट्री टू द कंट्रीज टू फाइंड द प्रॉपर हैबिटेट फॉर देमसेल्व्स टू लिव। सो दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव, so this is a very important and habitat for the migrating birds। तो जो बर्ड दूसरी कंट्री से आती है उनके लिए सबसे बड़ा हैबिटेट है। ओके, नेक्स्ट वन इज ढेबर लेक, also known as Jaisalmer Lake. ढेबर Lake is the second largest artificial lake in Asia. So एशिया की सबसे second largest artificial lake कौन सी? That is ढेबर Lake. Built by Maharaja Jai Singh in 1685. It is located in Udaipur district of Rajasthan. It comprises 7 islands and covers an area of 87 square kilometer. So देखिए जो ढेबर लेक है ये एशिया की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है और ये एक राजा थे जय सिंह, उन्होंने 1685 में बनवाई थी बिकॉज इट्स अ मैन मेड लेक, तो आर्टिफिशियल लेक बोला जाता है। और ये कहाँ पे? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में है और इसका एरिया कितना है? 87 स्क्वायर किलोमीटर। तो एरिया कवर्ड बाय दिस लेक इज 87 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए, द लास्ट वन इज लोकटक लेक, located 53 km from Imphal. It is the largest freshwater lake in the northeast India. It is known for its circular floating swamps which are called pomdis in the local language, covering an area of 300 square kilometer. The lake is a lifeline for a large number of people. So जिस नेक्स्ट लेक की हम बात कर रहे हैं ये लोकटक लेक है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ये दिस लेक कवर्स नियर अबाउट 300 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया।
जो ये लेक है ये नियर अबाउट 300 किलोमीटर का एरिया कवर करती है और ये लेक बहुत सारे लोगों के लिए जीने का भी सहारा है. So this is a lifeline for the large number of peoples of northeast India, and it is the largest freshwater lake of northeast India as well. And the name of this lake is Loktak Lake. So these are the various famous lakes of India. Okay, and after that there are the quick quiz, and that we are going to do tomorrow. Okay, so this was our today's session class, and I'll see you again very soon in the next class. So till then everybody have a good day.